Hello students, welcome back in our YouTube channel. So in the last lecture we discussed units and different system of measurement. So now in this lecture we have to start a new topic, that is the measurement of physical quantity. बच्चों आपको पता ही है कि फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. Okay. So in this topic today we will understand how to measure the three important physical quantities, that are length, mass and time. So first we talk about the measurement of length. So we know that measurement of length. So before, the measurement of physical quantity would depends on two basic factors. So it depends on two basic factors. Number one, magnitude of physical quantity, and second is accuracy and precision required for measurement. Understood? So first factor is what? The magnitude of physical quantity, and second is the accuracy and precision required in measurement. Otherwise what? We can't take proper measurement. So these two factors are very important while measuring a physical quantities. Also, sometimes a physical quantity can be measured by direct method, while sometimes we can measure it by indirect method. So here you have to understand what is direct and indirect method. Direct method मतलब directly we measure the physical quantity. Simple, जैसे कि suppose I want to measure the length of table, so I can measure using a meter scale, foot, etc. Understood? Suppose I want to measure the length of book, thickness of book, etc. So directly we can measure. So this method is called what? Direct measurement of physical quantity. But sometimes we can't measure direct. Sometimes we can't measure direct. For example, suppose I want to measure the size of moon. It is possible to measure directly? No, we can't. We can't measure it. So for that we have to use what? Indirect method. So in direct method we use some technique, some method to measure it. Understood? Okay. चलो तो अब अपने स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड टू मेजर स्मॉल लेंथ. तो सम ऑफ डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ आर एज अंडर. तो कुछ अपने को दी हुई है. पहले मीटर स्केल यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ फ्रॉम 10 टू द पावर -3 मीटर टू 10 टू द पावर +2 मीटर. तो इसकी रेंज के लिए, इतनी रेंज के लिए अपने क्या यूज कर सकते हैं? मीटर स्केल यूज कर सकते हैं. 1 ईयर कैलिपर्स यूज टू मेजर द लेंथ टू an accuracy of 10 to the power -4 meter. So third is screw gauge and speedometer can be used to measure an accuracy of 10 to the power -5 meter. Speedometer are used to measure the curvature of curved surface. Suppose lens is given to you and you have to measure the curvature of it. कर्व सरफेस आपको दिया गया है, उसका कर्वेचर मेजर करना है. तो प्रैक्टिकल में अपने करते हैं. 11th में एक प्रैक्टिकल भी है इसका, शायद आप करोगे उसको. ओके. तो ये था अबाउट डायरेक्ट मेथड. नाउ सपोज वी वांट टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंस, लाइक द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड जुपिटर, अर्थ एंड सैटर्न, एक्सेट्रा. So for that we have to use indirect method for measurement of that distance, and to measure that we are using a method that is called what? Parallax method. कौन सी मेथड यूज करते हैं अपने? पैरेलैक्स मेथड. देखो बच्चों, तो पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है पहले इसको समझते हैं. तो पैरेलैक्स इज व्हाट? ए इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, and large distance such as the distance of planets from the star, from the etc. with help of parallax method. Understood? तो अपने पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं उनको मेजर करने के लिए. बराबर. अब पैरेलैक्स मेथड में होता क्या है देखो, और व्हाट इज द पैरेलैक्स?
चलो बच्चों अपने पैरेलैक्स मेथड को समझते हैं। तो उसके पहले अपने को पैरेलैक्स समझना पड़ेगा। तो पैरेलैक्स एक सिंपल है, सिंपल एक अपने प्रैक्टिकल करते हैं। देखो पहले आप पेन ले लो और आपके चेहरे के सामने रखो, कितना 1 फीट दूर रखो, और पहले आपकी जो सेकेंड आई है उसको क्लोज कर दो और फर्स्ट आई से उसके देखो, किसको, पेन को, और पेन को भी देखो, और पेन के पीछे जो दीवार है उस दीवार पे पेन की पोजीशन को देखना। उसके बाद में क्या करना है आपको, फर्स्ट आई को क्लोज करो एंड ओपन योर सेकेंड आई एंड सी द पोजीशन ऑफ पेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉल। तो आप देखोगे दोनों कंडीशन में दीवार का जो बैकग्राउंड है, मतलब कि पेन की पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल चेंजेस। पहले सपोज के पहले पोजीशन यहाँ पे है, अब उसके बाद में पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। देखो तो पहले जब आपने दूसरी आंख को बंद किया था आपको पोजीशन यहाँ पे मिली, ए पे मिली, और जब आपने पहली आंख को बंद किया दूसरी आंख से देखा था आपको पोजीशन यहाँ पे मिली। देखो तो दोनों पोजीशन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पैरेलैक्स। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ पैरेलैक्स। ओके, अंडरस्टूड। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल पैरेलैक्स। देखो तो यही प्रिंसिपल अपने यूज करते हैं टू मेजर डिस्टेंस ऑफ distant objects such as the moon, stars, other planets. Okay, so we take one example here. एक ही अपने एग्जाम्पल लेते देखो। तो first suppose we decide the two position which are diametrically opposite। तो यहाँ पे दो पोजीशन डिसाइड करते देखो। तो पहली पोजीशन है ए और दूसरी पोजीशन है बी, बराबर। तो दो पर्सन है, एक पर्सन अपने ए पे रखते हैं, वहां से वापस टेलीस्कोप से रीडिंग लेगा, किसकी, प्लेनेट की रीडिंग लेगा, और दूसरा पर्सन है वो भी वहां से रीडिंग लेगा, क्योंकि अपने एक साथ में तो पॉसिबल नहीं है ना। और जैसे ही अपने उधर से उधर जाएंगे तो वापस प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लेनेट की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो अपने को दोनों पॉइंट से ऑलमोस्ट साथ साथ में ही रीडिंग लेनी है, बराबर। तो ये दोनों पर्सन यहाँ से रीडिंग ले लेंगे तो आपको देखो, और उसके बाद में रीडिंग लेने के बाद क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच में एंगल अपने फाइंड कर लेंगे। देखो तो प्लैनेट की पोजीशन पी है, पी को ए से मिला दिया तो ये आपको पी ए मिल गया। उसके बाद में पी को बी से मिला देते तो आपको क्या मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा। सो पी ए और पी बी के बीच में जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ पैरेलैक्स। अंडरस्टूड, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ पैरेलैक्स। सिंपल अपने बोल सकते हैं उसको, तो ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बराबर। सो एक बार आपके पास में एंगल आ गया, अब आप जानते हो देखो एंगल इज इक्वल टू क्या था, एंगल मतलब थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। बट ये आपको समझ में नहीं आएगा, थीटा का फॉर्मूला था आपको पता है, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे ये ए बी क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ए बी क्या कहलाएगा, आर्क। और यहाँ पे ए पी दैट इज इक्वल टू व्हाट, डी, इसको अपने रेडियस बोलेंगे बच्चों। बट ये रेडियस कैसे, तो उसको समझने के लिए अपने क्या करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर करता हूँ कि प्लैनेट है वो सेंटर में है और ये अर्थ उसके चारों तरफ घूम रही है। सपोज ऐसा मैंने एक सपोज किया, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल बन जाएगा तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, पी ए एंड पी बी बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। और ए बी क्या हो जाएगी, सर्कल की एक छोटी आर्क हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दैट विल बी ए स्मॉल आर्क। देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये आर्क हो जाएगी। पता चला कि नहीं, ये ए और ये बी और ये पी और ये थीटा हो जाएगा एंगल। पता चला कि नहीं ऐसा। देखो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे कितनी ली है, डी। डी क्या है, एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, अर्थ एंड दैट प्लेनेट। ओके, अंडरस्टूड। So what is D? D is the distance between what, planet and the earth, actually that we want to find here। समझ में आ गया। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे सिंपल
मैं यहाँ पे आर्क इज इक्वल टू मैंने लिखा स्मॉल बी और ए पी के बदले में यहाँ पे कैपिटल डी लिख देता हूँ, बराबर। और यहाँ पे जो एंगल होगा वो बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि अर्थ और प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अर्थ की साइज की तुलना में बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होगा तो एंगल तो छोटा ही बनेगा ना। समझ में आ गया कि नहीं? डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो एंगल तो छोटा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। तो एंगल बहुत छोटा होगा। सो हियर देखो, मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को तो डिस्टेंस फाइंड करना है। सो आई मेक व्हाट डी एज ए सब्जेक्ट, डी को यहाँ पे ला देता हूँ, थीटा को यहाँ पे भेज देता हूँ। देखो तो ये आ गया। सो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय थीटा, एंड आर्क इज इक्वल टू बी और थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये फॉर्मूला मिला, एंड दिस फॉर्मूला यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड डिस्टेंस प्लेनेट और स्टार। अंडरस्टूड? देखो अब अपने दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है, टू मेजर द साइज ऑफ प्लेनेट और स्टार। सो वी कैन मेजर द साइज ऑफ प्लेनेट और स्टार यूजिंग व्हाट पैरेलैक्स मेथड। देखो इसको पढ़ लेते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज डी एंड द एंगल सबटेंस बाय डायमीटर ऑफ प्लेनेट एट एनी पॉइंट on the earth is called the angular diameter of planet. So angular or angle alpha can be determined from any given location on earth by viewing the diametrically opposite points of planet through the telescope. देखो तो कैसे करते हैं? सिंपल उसकी मेथड को समझते हैं बच्चों। देखो अपने अर्थ के ऊपर खड़े रह जाते हैं एंड वी टेक ए पावरफुल टेलीस्कोप। पावरफुल का मतलब कि जिसका द टेलीस्कोप हैविंग हाई पावर ऑफ रिजोल्यूशन। ओके, और वो टेलीस्कोप लेके फर्स्ट आई फोकस द दिस साइड इज पॉइंट, और यहां से रीडिंग ले लूंगा। रीडिंग ले ली, उसके बाद में आई वॉट फोकस दिस ऑपोजिट साइड पॉइंट बी, बी को मैं फोकस करूंगा and again I will take the reading. Okay, so after taking the reading we will get angle theta between them, या अल्फा, यहाँ पे अपने अल्फा लिया इसलिए अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा अपने को मिलेगा। सो अल्फा दैट इज व्हाट एंगल बिटवीन अर्थ ई ए एंड ई बी, दोनों के बीच में। देखो ई ए और ई बी के बीच वाला जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा, बराबर। एंड साइज ऑफ प्लेनेट इज टेकन एज व्हाट डी, उसको क्या अपने डी ले लेते हैं, बराबर। क्या लेंगे? डी। सो हियर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। अंडरस्टूड? आर्क इज दैट इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल आर्क इज इक्वल टू diameter of planet, small d, and radius is equal to what? Capital D, distance between earth and moon, or that measured point. Understood? So I want to find what diameter, so I make what? Small d as a subject. Small d is equal to cap theta multiply by capital D. देखो तो ये अपने को क्या मिल जाएगा? diameter of planet. Understood? So यहाँ पे जो distance, actually the distance between earth and moon is very large compared to size of earth, and that's why angle theta will be very less. We will get in second or minute, convert to radian, and then after we multiply by the distance. So in this way we can get the size of planet, okay, or size of moon, etc. Understood? देखो बच्चों अब अपने को नया टॉपिक, द मेथड टू मेजर द माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आगे वाले दोनों टॉपिक्स के अंदर अपने क्या पढ़ा? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब अपने को समझना है मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लाइक द size of atoms, molecules, etc. Okay, देखो
सो वी कांट यूज, और ऐसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी कांट यूज व्हाट वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और सिमिलर अदर इंस्ट्रूमेंट to measure very small distance like the size of molecules, that is between 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 10 मीटर। नहीं कर सकते हैं ना, अरे एटम मॉलिक्यूल दिखता भी नहीं है तो कैसे अपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज कर सकते हैं, कैसे अपने वर्नियर कैलिपर्स यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। यस, okay, so that's why for measuring we have to adopt a special method, and in that special method first अपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं that is what optical microscope। तो optical microscope use visible light to measure the size of objects or particles or atoms and molecules. So we know that the wavelength of visible light is between 4000 angstrom to 7000 angstrom. So hence optical microscope can't resolve particle with size smaller than 4000 angstrom। अगर इससे भी कम साइज है तो अपने we can't resolve it using optical microscope। तो फिर तो क्या करेंगे, अब इससे भी अगर छोटा और पार्टिकल है तो उसको देखने के लिए क्या यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम यूज इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिजोल्यूशन ऑफ 0.6 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यूजिंग इट we can almost resolve atom and molecules of material. Understood? But nowadays we are using tunneling microscope, and especially it is used in nanotechnology. Understood? Because it having what high resolution and which is used to estimate the size of molecules. Next, we have one other method to measure the size of atoms and molecules, that is monomolecular layer method। कौन सी है नई मेथड, मोनो मतलब एक, मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल की जो लेयर बनती है, जैसे देखो ये ऐसे सब ये मॉलिक्यूल्स एक एक जुड़ के एक लेयर बनेगी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा रहेगा। दो ऊपर नहीं आएगा, एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, तो इसको नहीं बोल सकते मोनोमोलिक्यूलर लेयर मेथड। तो मोनोमोलिक्यूलर लेयर के अंदर अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि एक एक मॉलिक्यूल मतलब प्लेन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। जैसे जैसे सपोज ये पेपर है, प्लेन है, तो एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे ऐसे, समझ में आ गया? तो ऐसे मॉलिक्यूल सब एक दूसरे के पास में आएंगे, एंड हियर द विड्थ ऑफ दिस लेयर इज इक्वल टू साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल, is equal to size of one molecule, that's why it is called monomolecule layer method। कि लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा तो वो एक ही होगा, उसके ऐसा नहीं कि लेयर के अंदर एक मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे दो मॉलिक्यूल्स बन के ऊपर नीचे लेयर नहीं बनेगी। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे इसके अंदर तो सभी मॉलिक्यूल्स है। ये अपने क्या मैंने बताया आपको, उसका क्रॉस सेक्शन व्यू बताया। अंडरस्टूड? देखो तो वैसा ही अपने यहाँ पे यूज करते हैं। So one of method for finding the size of molecule is the method of monomolecular layer। So in this method the thickness of molecular layer is measured to determine the size of molecule। Okay, understood? Okay, so we take one important example to understand the monomolecular layer method। So here we take ओलिक एसिड, क्या आपने लेते हैं, ओलिक एसिड लेते हैं। ओके, तो ओलिक एसिड मेथड अपने यूज करेंगे। तो स्पेशली इसमें कैसे अपने यूज करते हैं,
तो उसकी जो प्रोसीजर है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो कि टू मेजर ए वेरी स्मॉल साइज सच एज द लिक्विड मॉलिक्यूल्स वी हैव टू adopt a special method for determining the size of oleic acid molecule. Understood? आपको पता ही होगा कि ओलिक एसिड इज ए शॉपी लिक्विड which small with a large molecular size, and that is nearly equal to 10 to the power minus 9 meter. So to find the size of molecules of oleic acid we form a monomolecular layer of oleic acid on water surface. बराबर। तो वाटर सरफेस के ऊपर अपने को उसकी लेयर बनाना, तो क्या करेंगे, अपने एक कंटेनर लिया एंड उस कंटेनर के अंदर पानी भर दिया। देखो ये सब पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद क्या करते हैं अपने, मैं 1 cc क्या लेता हूं, 1 cc ओलिक एसिड एंड 500 cc अल्कोहल लेता हूं। सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका लिया, मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका लिया, ओलिक एसिड का लिया। और 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका लिया मैंने, अल्कोहल का लिया। अंडरस्टूड, अल्कोहल का लिया। क्लियर। एंड यूजिंग दिस टू आई मेक सॉल्यूशन, मैं क्या बनाता हूँ, एक सॉल्यूशन बनाता हूँ। बराबर। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको पता ही है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/500। क्या होगी, 1/500 होगी। पता चला कि नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। क्लियर, ओके। और अल्कोहल यहाँ पे क्यों लेते हैं अपने, क्योंकि अल्कोहल अपने इसके लिए लेते हैं कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही पानी के ऊपर अपने डालेंगे इस पूरे सॉल्यूशन को, तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उड़ जाएंगे। दैट मीन्स ओके, अल्कोहल चेंज टू व्हाट, गैस एंड इवोपोरेट हो जाएगा। सो ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओलिक एसिड विल बी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बराबर। तो देखो ये दोनों की अपने सॉल्यूशन बना दिया और पानी के ऊपर अपने डाल दिया ऐसा धीरे धीरे। तो ये लेयर बन गई। किसकी लेयर बनी है, दिस लेयर कंटेन व्हाट, ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल। बराबर, अल्कोहल आ जाएगा। अंडरस्टूड, अल्कोहल आ जाएगा। बराबर, क्लियर। तो खाली अपने यही लिखते हैं यहाँ पे, ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल। अब अपने यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे ओलिक एसिड के n मॉलिक्यूल्स है। कितने हैं यहाँ पे, उसके n मॉलिक्यूल्स है। बराबर, कितने मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अल्कोहल के भी n ही होंगे, उसके भी बहुत ज्यादा, लेकिन अल्कोहल के ज्यादा होंगे कंपेयर टू ओलिक एसिड। अब अपने कैलकुलेशन करते हैं। बराबर। तो क्या किया, सबसे पहले अपने मिक्सचर बना दिया, मतलब सॉल्यूशन बनाया किसका, ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल, एंड उसको पानी के सरफेस के ऊपर डाल दिया। अब डालने के बाद में ये ऐसे एडजस्ट होता है कि एक ही लेयर बनती है, मोनोमोलिक्यूल लेयर बनती है। और कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे अपने देखेंगे तो अल्कोहल तो इवोपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या रहेगा, खाली क्या रहेगा, खाली ओलिक एसिड मॉलिक्यूल। बराबर। अब मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो इसका फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, डायमीटर मेजर करना, नहीं सॉरी, इसका अपने को सरफेस एरिया मेजर करना पड़ेगा कंटेनर का। जिस कंटेनर पानी भरा हुआ है, नहीं ये जिसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है, मतलब पानी है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया of water container will be equal to area of layer।
दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेयर का एरिया हो जाएगा। देखो सब कैलकुलेशन कर देते हैं बराबर, तो कैलकुलेशन कर देते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन है, लेट V is volume of one V is volume of one drop water। समझ में आ गया, मतलब कि जो मिक्सचर बना के नहीं उसका, लेट V is the volume of one drop of water, understood। So therefore volume of oleic acid having n drops of solution इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है V, तो n ड्रॉप का कितना हो जाएगा NV, कितना हो जाएगा NV हो जाएगा, क्लियर ओके। और उसके अंदर ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 आउट ऑफ 500, so that is what total volume of oleic acid solution or oleic acid, understood। Now second, the volume of layer of oleic acid is कितना हो जाएगा, that is equal to area of cross section multiply by thickness। how to measure the area of this layer, कैसे मेजर करेंगे अपने, बाय यूजिंग व्हाट ट्रेस पेपर और ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर से अपने धीरे धीरे बहुत केयरफुली एरिया मेजर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर रहे कि ग्राफ पेपर उसके ऊपर ही रख दो, मतलब बहुत ध्यान रख के आपको मेजर करना पड़ेगा, ओके अच्छा, ताकि ये आपका रीडिंग प्रॉपर आएगा। So by equation number 1 and 2, by equation number 1 and 2, both are what the volume of oleic acid, so we can compare them। तो कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे अपने, देखो AT is equal to NV multiply by 1 upon 500, but I want to find the thickness, so I make what small t as subject, तो ये क्या हो जाएगा NV अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय A। देखो तो ये अपने को क्या मिला फॉर्मूला, एंड यूजिंग दिस वी कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ मोनोमोलिक्यूलर लेयर, एंड थिकनेस इज इक्वल टू साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ओके क्लियर। चलो अब उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक, but before starting next topic, first we have to understand certain practical units that are used in measurement of very small and very large distance। so पहले अपने बात करते हैं फर्मी, that is also called the femtometer। so one femtometer is equal to 10 to the power minus 15 meter। one angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter, understood। Now to measure very large distance, such as the distance between the Earth and other planets, we use what astronomical unit। So now what is the astronomical unit? So astronomical unit is defined as average distance of Sun from Earth, average distance of Sun from Earth, understood, that is called one astronomical unit। so one astronomical unit is equal to 1.496 multiplied by 10 to the power 11 meter, ये हो जाएगा, क्लियर। सेकेंड यूनिट to measure very large distance is light year।
So light year is what? The distance traveled by light in 1 year. That is equal to light year. Understood? That is equal to light year. So 1 light year is equal to 9.46 multiplied 10 to the power 15 meter. अब how we got it? कैसे? Simple calculation आपको पता ही है कि distance traveled by light in 1 second is what? 3 multiplied 10 to the power 8. तो 1 मिनट में कितना होगा? अभी मल्टीप्लाइड बाय 60. 1 मिनट में ये हो गया तो 1 आवर में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 60. 1 आवर में आ गया. डे में टोटल कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स. सो मल्टीप्लाई बाय 24 आवर. दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 डे. एंड नाउ आई मल्टीप्लाइड बाय 365 days. So that will be nearly equal to 9.46 multiplied 10 to the power 15 meter. तो ये मिल जाएगा क्या? Distance traveled by light in 1 year. Other unit to measure to measure very large distance is parsec. So 1 parsec is equal to 3.08 multiplied 10 to the power 16 meter. Okay? तो ये भी यूज करते हैं. उसके बाद में बच्चों अपना नया टॉपिक है छोटा, द मेजरमेंट ऑफ मास. तो पहले अपने क्या पढ़ा? एज आई टोल्ड यू इनिशियली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. क्या बताया था? कि अपने यहाँ पे बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे. हाउ टू मेजर लेंथ, टाइम एंड मास. अंडरस्टूड? हाउ टू मेजर द लेंथ, मास एंड टाइम. सो लेंथ का मेजरमेंट अपने सीख लिया. हाउ टू मेजर द स्मॉल लेंथ एंड लार्ज लेंथ. उसके बाद में अब सेकेंड जो पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ मास. तो मास को अब कैसे मेजर करना? देखो सिंपल. सो मास क्या है? सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं. मास इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट in a substance is called its mass. Okay, so amount of matter in the substance is called mass. Mass is a basic property of matter, so it does not depends on external circumstance like the temperature, pressure and humidity. इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. मतलब टेम्परेचर बढ़े या घटे, ह्यूमिडिटी बढ़े या घटे, उससे मास में कोई प्रकार का चेंज होगा नहीं. अंडरस्टूड? देखो अब अपने को समझना है ग्रेविटेशनल मास कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल मास. सो ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ सिंपल बैलेंस. So in this method the gravitational force act on given object is compared with gravitational force acting on some standard object. तो सिंपल आपको पता ही, जैसे साग भाजी आप लेने जाते हो या दुकानदार के पास में आप जाते हो तो दुकानदार क्या करता है? एक साइड तो जो स्टैंडर्ड वेट रखेगा 1 kg 500 ग्राम या 250 ग्राम, और दूसरी साइड क्या रखेगा? जो भी आपको सपोज दाल खरीदनी है, पल्सेस लेनी है तो पल्स को तोल के देगा, वेजिटेबल को तोल के देगा. तो ये होता है. अंडरस्टूड? सो मास प्लेइंग द रोल इन ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल मास. उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास बोलता है. और ग्रेविटेशनल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ. तो ग्रेविटेशनल मास सब जगह कैसा होगा? सेम ही होगा. नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स mg act on body of mass m is called the weight of object. क्या बोलेंगे उसको? weight of object. So gravitational force acting on a body of mass n is equal to what? mg. mg is called what? weight of body. And weight of body is not same at all points. Why? Because it depends on value of g. And as we know that value of g is not same at all points. Value of g is more at pole and less at equator. समझ में आ गया? So we observe the variation in weight of body at different points on the surface of Earth. It changes with change in height, etc. Okay? तो
इसकी बात करें तो वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर्थ, वो भी आपको पता है. एंड वी नो दैट value of g on the surface of moon that is equal to 1/6 times the value of g on the surface of earth. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि आपका मास है अर्थ के ऊपर 60 kg है, तो मून के ऊपर आप जाओगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 6 मतलब 10 kg हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मून का जो g है मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 1/6 टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ g on the surface of earth. That's why we can see more variation in the weight of body at different points in the space. सपोज आप कहीं पे जाओगे, जैसे कि आप स्पेस में जाते हो, वहाँ पे जी 0 है, तो वहाँ पे आपका वेट 0 हो जाएगा, लेकिन आपका मास 0 नहीं होगा. मास तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि मास डिपेंड नहीं करता है पोजीशन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. That's why what we say mass is what the amount of matter present in a body. अब उसके बाद में दूसरा अपने पास में जो मास है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनर्शियल मास. तो इनर्शियल मास ऑफ बॉडी इज मेजर यूजिंग व्हाट, इनर्शियल बैलेंस. तो इनर्शियल बैलेंस यूज करके अपने मेजर करते हैं. ओके, नॉर्मली द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉमन बैलेंस, and large mass like the mass of planet and stars etc. that can be determined by using Newton's law of gravitation. और आप सब लोगों को पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कितना था, F इज इक्वल टू G(m1 m2) डिवाइड बाय r स्क्वायर. समझ में आ गया? So using Newton's law of gravitation we can calculate the mass of unknown planet or star if we know the force acting between earth and that star. जी तो अपने पास ही होता है, एक का मास तो अपने को चाहिए, एंड मास ऑफ अर्थ वी नो एंड डिस्टेंस वी कैन फाइंड. सो आफ्टर गेटिंग out of that means total 5 physical quantities are there, total 5 unknowns are there. So out of 5 unknown, if you know 4 then you can find fifth easily by using this formula. समझ में आ गया? टोटल यहाँ पे अननोन कितने, 5 है, तो 5 में से 4 को अगर आप जानते हो, 4 की वैल्यू आपके पास में है, तो आप 5वें को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस, जैसे कि मास ऑफ व्हाट, एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि मेरे को एटॉम पार्टिकल का मास मेजर करना है. Suppose I want to measure the mass of atom and molecules, तो we use what, mass spectrograph यूज करते हैं. पता चला, एक ही दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ. तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ कैसे मेजर करता है? तो सिंपल कि इन दिस मेथड द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल in electric field or magnetic field is proportional to mass of charge particle. So once again the radius of trajectory of charge particle in electric and magnetic field is proportional to mass of charge particle. देखो जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, so here R is directly proportional to mass. Understood? So in this way we can measure the mass of very very small objects such as atom, molecules, etc. अब उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, द यूनिट टू मेजर मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो देखो, तो जब अपने एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं मेजरमेंट की, एट द टाइम किलोग्राम एंड ग्राम इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट, और उसमें मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्यूरेसी नहीं मिलेगी. So for that what we use a other unit that is called what, atomic mass unit. क्या बोलते हैं उसको, atomic mass unit बोलते हैं, इसको AMU भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इसका U भी लिखते हैं ऐसा. So what is the atomic mass unit? So atomic mass unit is equal to mass, मतलब कि 1/12 mass of unexcited atom of carbon is taken as 1 AMU. Understood? So once again, the 1/12 part of
unexcited atom of C12 is called 1 AMU, and that is equal to, or I can say 1 AMU is equal to 1.66 multiplied by 10 to the power 27 kg. Understood? So 1 AMU is equal to 1.66 multiplied 10 to the power 27 kg. Understood? Clear? Okay. But physics में भी ऐसे तो there is wide range of masses, जैसे 10 to the power -30 से लेके 10 to the power 55 kg, the mass of observable universe. Understood? This is the mass of electron. अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक था दैट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो बच्चों आपको पता ही था कि आप जानते हो सिंपल कि इन ओल्डर टाइम, जब पुराने टाइम की बात करें तो अपने लोगों के पास में कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जैसे अपने पास में है आज फिलहाल. तो उस टाइम के अंदर लोग कैसे मेजर करते थे टाइमिंग? देखो, डे टाइम के अंदर बाय सीइंग द शेडो ऑफ सनलाइट, और सन डायल क्लॉक थी, जयपुर के अंदर थी, जंतर मंतर के बाद. और उसके बाद में वी यूज व्हाट सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक एक्सेट्रा यूज टू मेजर द टाइम. बराबर. तो ये दिन के टाइम में यूज करते थे. बट रात के टाइम की बात करें तो वहां पे कोई सन तो होता नहीं था. तो रात के टाइम में लोग कैसे मेजर करते थे? बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ मून, pole star, etc. and measure time. But nowadays, due to what large invention in science and technology, nowadays we are using what pendulum clock and many other clocks used to measure time. In research, we use what cesium clock to measure time because it gives more accuracy. Understood? बराबर. तो बस आज इतना ही लेक्चर में रखते हैं. ओके, बाय बाय.